وہ اپنے علاقے کا سب سے بہادر، دلیر، شفاق اور خونخوار انسان تھا۔ ان تمام خوبیوں کی بنا پر وہ اپنے علاقے میں شیطان کی طرح مشہور تھا اور ایک شیطان ہی سمجھا جاتا تھا۔ قتل و غارت کرتے وقت اس کا پالا ایک عجیب و غریب سچویشن سے پڑ گیا۔ ایک ایسے انسان کا ماجرا جو فطرتاً تو سانپ تھا، لیکن جب انسان بنا تو اس کا پالا سانپ سے پڑ گیا۔ میرے ایک اشارے پر ہر حسین لڑکی میری خلوت میں پہنچ جاتی ہے، اور پھر جب وہ میرے بستر کی زینت ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں میں خوف، ہونٹوں پر سکوت ہوتا ہے۔ وہ میری دست درازی پر ذرا بھی مدافعت نہیں کرتی اور خود کو میرے حوالے کر دیتی ہیں۔ لیکن تمہیں دیکھ کر میرے دل میں ایک انوکھی خواہش پیدا ہوئی ہے، ایک عجیب خواہش۔ میں چاہتا ہوں کہ میری سیج پر مسکراہٹ ہو، ادائیں ہوں، خوف نہ ہو، چاہت ہو، سکوت نہ ہو، کہکے ہو، سپردگی نہ ہو، جلاہٹ ہو، انکار نہ ہو، اور میری اس خواہش نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ تو تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے؟ ماں رخ نے اس سے پوچھا۔ ہاں بولو، کیا تم میری محبت کا جواب محبت سے دو گی؟ میں تمہیں پوری زندگی کا ساتھی بنا لوں گا۔ میں اور شیرزاد کا جملہ پورا نہ ہو سکا اور ماں رخ نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ شیرزاد ششدر رہ گیا۔ کیسا انوکھا تجربہ تھا! کسی نے اس کے چہرے پر نفرت سے تھوک دیا ہے۔ کسی کی حسین آنکھوں میں اس کے لیے خوف نہیں، نفرت تھی۔ اس نے چہرہ صاف نہ کیا اور شکست خوردہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تو تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ تو تم نے نکل جاؤ اس کھڑکی سے، اپنے ساتھیوں کو لے کر آؤ اور مجھے اٹھا کر لے جاؤ۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بے پناہ نفرت۔ تم درندے ہو، محبت انسانوں سے کی جاتی ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنی وحشت کو آواز دو۔ محبت والے دل تو درد سے لبریز ہوتے ہیں۔ وحشت کے پتلے محبت کے مفہوم سے بھی ناآشنا ہوتے ہیں۔ پہلے دل کو ٹٹولو اور اس میں محبت پیدا کرو، تب کسی کی محبت پیدا کر سکو گے۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، ماں رخ نے غیظ و غضب سے لرزتے ہوئے کہا، اور شیرزاد پتھر کے بت کی طرح ساکت اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت غضب کی چنگاریاں نہیں، غم کے آثار تھے، اور پھر وہ خاموشی سے مڑا اور کھڑکی سے باہر گیا۔ ماں رخ اس کے گھوڑے کو دیکھتی رہی، اور جب وہ برف کی دھند میں غائب ہو گیا تو اس نے نفرت سے کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کر کے جب وہ مڑی تو شازمان اور گلزمان اس کے سامنے کھڑے تھے۔ گلزمان فخر سے بیٹی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تو نے باپ کی گردن فخر سے بلند کر دی بیٹی، لیکن اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ شازمان ضروری سامان باندھ لو، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے، ایسی جگہ جہاں شیرزاد کو ہمارے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ اور شازمان خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ 20 آدمیوں پر مشتمل قافلہ ہے سردار، لڑکیاں بھی ہیں اور سامان بھی، نہ جانے کون بد نصیب ہیں۔ میرا خیال ہے کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں سردار۔ کیا حکم ہے؟ مخبر نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور شیرزاد کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن شیرزاد لمبے چاقو سے نوکدار لڑکی کو چھیلتا رہا، لکڑی کو چھیلتا رہا، اور وہ ایک چٹان پر اداس سا بیٹھا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد کچھ یادیں اس کے ذہن کے پردے پر ابھر آئی تھی، اور ان میں سے ایک بوڑھا چہرہ تھا، عبادت اور پاکیزگی سے پرنور چہرہ، اور جس پر سفید براق داڑھی لہرا رہی تھی، اور نرم ہاتھ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہے تھے۔ اور یہ چہرہ زور آور خان کا تھا، اس کے باپ کا چہرہ۔ ایک اور چہرہ محبت اور ممتا سے لبریز، آنکھیں جو اس کے شکل سے روشنی حاصل کر رہی تھی، یہ ماں کی آنکھیں تھیں۔ نہ جانے اسے یہ بھولی بسری کہانی کیوں یاد آ گئی تھی، اور اس کہانی نے اس کے سینے کے اندر دل کا احساس دلایا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ دل بھی کوئی چیز ہے۔ ایسے وقت میں اس آدمی کی مداخلت اسے ناگوار گزری۔ کیا حکم ہے سردار؟ مخبر نے پھر پوچھا۔ بھاگ جاؤ، جو دل چاہے کرو، اس نے مخبر کو جھڑک دیا، اور وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ آن کی آن میں درجنوں گھوڑے پہاڑ سے نیچے اترنے لگے، وحشت اور بربریت کا بازار گرم کرنے کے لیے، لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز تھا، تمام باتوں سے بے خبر تھا۔ وہ تو اس وقت چونکا
जब गोलियों की आवाज़ें और इंसानी चीज़ें उसे सुनाई दी। वो तिलस्म से निकल आया और फिर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने साथी से क्या कह दिया था। वो तेज़ी से एक बुलंद चट्टान पर पहुंच गया और वहां से नीचे का मंजर देखने लगा। उसके साथी काफले पर टूट पड़े थे, लोग मर रहे थे। जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म था, चीखें बुलंद हो रही थीं। और फिर उसकी कानों में एक आवाज़ उभरी, मोहब्बत करने वाले दिल तो दर्द से लबरेज होते हैं। पहले अपने दिल को टटोलो, उसमें मोहब्बत पैदा करो, तब किसी की मोहब्बत हासिल कर सकोगे। और फिर ये आवाज़ें तेज़ हो गईं। ये आवाज़ें चट्टान से निकल रही थी, पहाड़ों से निकल रही थी और उसके कान फटे जा रहे थे। उसने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ें तो उसके दिल से निकल रही थीं। तब उसने कानों से हाथ हटा लिए और खामोशी से अपनी जगह से उठ गया। वो गार में दाखिल हुआ और वहां से उसने भारी मशीन गन उठाकर कंधे पर रख ली। कारतूसों की पूरी पेटी दोनों हाथों से संभाली और गार से निकल आया। उसके साथी काफले पर काबू पा चुके थे और अब गिरफ्तार शुदगान को रस्सी से बांध रहे थे। उनमें लड़कियां भी थी, मर्द भी थे। शेरजाद ने एक बुलंद चट्टान पर मशीन गन फिट कर ली और उस पर रेल चढ़ाने लगा। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और फिर उसके साथियों ने वापसी का सफर शुरू कर दिया। शेरजाद गौर से उन्हें देख रहा था और फिर उसके दांत भिंच गए, जबड़ों के मसल्स उभर आए और मशीन गन का दहाना खुल गया। वो अपने साथियों को निशाना बना रहा था। वो बुलंदी पर था और उसके साथी कोशिश के बावजूद उसके निशाने से नहीं बढ़ सके थे और उस नागहानी मुसीबत से घबरा गए थे। वो समझ भी ना सके कि ये मुसीबत उन पर कहाँ से नादल हो रही है और उसी हालत में वो सब शिकार हो गए। बंधे हुए लोग सहमे हुए उस आफत खुदाबंदी को देख रहे थे जो उनके दुश्मनों पर नादल हुई थी। आन की आन में एक डाकू मौत के आगोश में पहुंच गया और आखिरी आदमी को कत्ल करने के बाद शेरजाद चट्टान के अकब से निकल आया। वो नीचे उतरने लगा और अपने साथियों की लाशों के दरमियान में से गुजरकर उनके पास पहुंच गया जो असीर थे। वो सब दहशत भरी नजरों से उसे देख रहे थे। उसने लंबा चाकू सीधा किया और उनकी रस्सियां काटने लगा। फिर उसने उन सब को आज़ाद कर दिया और भारी लहजे में बोला, मैं तुम्हारी साथियों की जिंदगियां तो नहीं लौटा सकता, मुझे उनकी मौत का अफसोस है। इन पहाड़ों के सबसे बुलंद हिस्से में एक गार है और उससे अंदर चले जाओ और वहाँ बेशुमार खजाना मौजूद है, इतना खजाना कि तुमने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। वो सब तुम्हारा है, जाओ उसे हासिल कर लो, उसने कहा और आगे बढ़ गया। वो सब उसे हर से देखते रह गए थे और उस वक़्त तक देखते रहे जब तक वो घोड़े पर बैठकर उनकी नज़रों से ओझल ना हो गया। उसे अपने रास्ते की मुश्किलात का एहसास था। वो जानता था कि डाकू शेरजाद की हैसियत ख़त्म हो जाने के बाद उसके दुश्मन उसके खून के प्यासे हो जाएंगे और उसे किसी चट्टान की पुश्त पर पनाह ना मिल सकेगी। लेकिन अब वो तमाम खतरा से बेनियाज हो जाना चाहता था। वो अपनी महबूबा को खुशखबरी सुनाना चाहता था कि अब वो इंसान बन गया है। उसने शेरजाद की हैसियत ख़त्म कर दी है और अब वो उसकी आगोश में ज़िंदगी बसर करने का ख्वाहिशमंद है। उसे यकीन था कि मारूख इतनी बड़ी कुर्बानी पर उसे गले से लगा लेगी। वो तस्वर में अपनी महबूबा से हम आगोश घोड़ा दौड़ाए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वह बस्ती में पहुंच गया। वो वालहाना अंदाज में अपनी महबूबा के मकान की तरफ बढ़ गया। रास्ते में नजर आने वाले लोग दहशत ज़दा होकर भाग रहे थे। घरों के दरवाजे बंद हो रहे थे, लेकिन वह सब बातों से बेनियाज था। अपनी महबूबा के मकान के सामने पहुंचकर वो घोड़े से उतर गया। इस बार वो खिड़की के रास्ते नहीं, दरवाजे के रास्ते अंदर जाना चाहता था और दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो उसे धकेल कर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन मकान सुनसान पड़ा था। कोई इंसान मौजूद ना था। वो एक एक कमरे को देखता रहा। तमाम ज़रूरी सामान गायब था, सिर्फ फालतू सामान पड़ा था। उसका दिल लर्ज गया। वो पागलों की तरह एक एक कोने को तलाश करता रहा। उसने तमाम फर्नीचर तोड़ फोड़ दिया और फिर वो दहशत अंदाज में बाहर निकल आया। बाहर भी वीरानी फैली हुई थी, सड़कें गलियां खाली हो गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक मकान की तरफ बढ़ा और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। सहमे हुए लोगों ने जवाब नहीं दिया और उसने दरवाजे पर एक ज़ोरदार लात रसीद की। अंदर से कई सहमी सहमी चीखें बुलंद हुई और वो अंदर दाखिल हो गया। सहमे हुए लोग एक दूसरे से चिमटे बैठे थे। उसने उन्हें घूरा और वो लड़ने लगे और फिर उसके मुंह से
शिकस्त खुर्दा आवाज़ निकली, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुमसे एक बात मालूम करना चाहता हूं, सामने वाले मकान के लोग कहाँ गए? सहमे हुए लोगों के मुंह से आवाज़ ना निकल सकी तो उसे गुस्सा आ गया। जवाब दो, वो कहाँ गए? वो धाड़ा। चले गए पहाड़ों की उस तरफ किसी दूसरी बस्ती में। वो मकान छोड़कर चले गए। एक सहमी हुई आवाज़ ने कहा, किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गए? नहीं। उसका दिल डूबने लगा और वो थके थके कदमों से बाहर निकल आया और फिर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। उसका जहन तारीख हो गया था। वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं था और उसे सिर्फ एक लगन थी, वो मारूख को तलाश करे। और वो उसे तलाश करने लगा, पहाड़ों में, चट्टानों में, सारी रात और फिर दूसरी सुबह। और उसका घोड़ा पहाड़ में भटकते भटकते बेदम हो गया और फिर एक जगह घोड़ा गिर पड़ा। चंद लम्हे गहरी गहरी सांसें लेता रहा और फिर दम तोड़ गया। मारूख और उसकी हलक से वहशतज़दा आवाज़ निकली और पहाड़ों में गुम हो गई। उसने घोड़े पर एक निगाह डाली और आगे बढ़ गया। सूरज बुलंद होता रहा, शाम हुई और रात हो गई। वो जलता रहा, चलता रहा शराबियों के से अंदाज में और फिर बेदम होकर एक जगह गिर पड़ा। उसके पांव सूज गए थे, हलक में कांटे पड़ गए थे। भूख और थकन से नढाल वो उसी जगह पड़ा रहा। फिर चांद निकल आया और वो बेबसी से चांद को तकने लगा और ना जाने क्यों चांद ने कुछ अजीब सी शक्लें इख्तियार कर लीं। एक पाकीज़ा चेहरा, लोग जिसके तकद्दस की कसम खाते थे, ममता भरी आंखें। और फिर उसने देखा चांद सुर्ख हो गया, खून की तरह सुर्ख, और उसे खून टपकने लगा और उसने अपनी पेशानी पर उस खून की नमी महसूस की। उसका हाथ पेशानी की तरफ बढ़ गया और उसी वक्त एक फुंकार सुनाई दी, एक खौफनाक फुंकार। वो दहशतज़दा होकर उठ गया कि एक सांप का फन उसके पेशानी पर लहरा रहा था। जो ही वो उठा, सांप ने उसकी पेशानी पर काट लिया और वो दर्द से तड़प उठा। उसने छलांग लगाने की कोशिश की और छलांग लगाकर जिस जगह वो गिरा वहाँ दूसरा सांप मौजूद था। सांपों का जोड़ा था जो चांदनी रात में किसी की मदाखलत बर्दाश्त न कर सका। शेरजाद दर्द से तड़पता रहा। सांपों का जहर उसके पूरे जिस्म में दर्द बनकर दौड़ रहा था। जुबान सूख कर कांटा हो गई। रात में आंखें हलकों से उबल पड़ी थी। मारूख और उसके मुंह से आखिरी अल्फाज निकले और उसके साथ ही नाक, कानों और मुंह से खून की फवार उबल पड़ी। आंखें दहशतज़दा अंदाज में खुली रह गईं। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे और उन्हीं पर सामान भी लदा हुआ था। कदम कदम पर शेरजाद के आदमियों से मिड भीड़ का खतरा था, इसलिए वो बहुत एहतियात से सफ़र कर रहे थे। मारूख बाप के साथ घोड़े पर थी और शाहजमान माँ को संभाले हुए था। तेज धूप की वजह से घोड़े बुरी तरह हाँप रहे थे। वो चट्टान महफूज है, हम उसकी छाँव में कुछ देर आराम करेंगे और जब धूप की तमादत खत्म हो जाएगी तो फिर सफ़र करेंगे, गुलजमान ने बेटे से कहा। और वो चट्टान की तरफ बढ़ गए। जो ही वह चट्टान के करीब पहुंचे, ठटक गए। सामने ही किसी इंसान की लाश पड़ी थी। ओह, लाश है, न जाने कौन बेचारा है। मुमकिन है शेरजाद का ही शिकार हो और उसकी नज़रों में इंसानी ज़िंदगी की क्या कीमत है। बूढ़े गुलजमान ने लाश की तरफ बढ़ते हुए कहा। दूसरे लोग भी उसके साथ सहमे हुए लाश के करीब पहुंच गए, लेकिन उसकी शक्ल देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं और मारूख के मुंह से निकला, ये तो शेरजाद है। हाँ देखो बाबा, ये शेरजाद ही है। और उसका लहजा खुशी से भरपूर था। हाँ, शेरजाद ही है। ओहो, और शायद उसे सांप ने डस लिया है। एक मूजी का अंजाम दूसरी मूजी के हाथों हो गया, मारूख ने नफरत से कहा और शेरजाद के मुर्दा चेहरे पर थूक दिया। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।